Assalamu alaikum. I'm Dr. Faiza and I'm here with you for this short discussion of how to attempt physiology OSPE. I'm not going to focus much on the methodology of these practicals, but just to give you a few tips how to prepare for unobserved and the observed stations of these practicals. Today we are going to focus on the practical of use of microscope in physiology lab and hemocytometer use. So starting from the microscope, first of all, for unobserved stations, you of course need to know the labeling of all the parts of the microscope. As you can see over here in this image, at least these points you should be able to identify, name them, and give at least one major use of each of these identified parts. Another thing you can see over here, some of them are collectively given under one heading. For example, the magnifying system of the microscope, the illuminating system of the microscope, and the focusing system of the microscope. So you should be able to categorize these parts under those headings also. For example, if you are asked to write down 2 or 3 parts of microscope which come under the magnifying system, you should be able to tell the eyepiece comes under that, and the objective lenses come under that, and you should be able to identify these 9 to 11 points are under the magnifying system of the lens. The focusing system of lens has this coarse focus knob and fine focus knob. Illuminating system will have the condenser, aperture, light source, so you should also be able to categorize that. And the fourth one you can see over here is the support system. So number 1, identify the parts, categorize them under the appropriate heading, and number 3, you should be able to give at least one major function of that part. For example, if you are asked about the coarse focus knob, its purpose will be to coarsely adjust the focus of the specimen, and respectively the functions of the other one. So here I'm showing you the labels of these parts one by one, which were unlabeled first, and now I am showing you the label. You can self-assess yourself by going through this slide, and that's all the labeling. And this is the magnified version of all those components which were labeled in the previous slide. You can have a look over here closely, and these are the examples of related unobserved stations. Of course there will be more, but this is the prototype example. Identify the labeled portion of the microscope, tell their function, main function of any part of the microscope, which component of microscope serves the purpose of, for example, illumination, magnification, support, and as I told you earlier, the 4 main categories. And this is the example of enlist 2 components of either illuminating, focusing, supporting system of the microscope. When you this is very important, that you should be able to give the magnification of each type of lens. For example, oil immersion lens is the 100x lens, so you should be able to tell that. Low power scanning lens किसको कहते हैं, 4x को कहते हैं. मैग्निफिकेशन पावर अगर इनकी पूछी जाए तो वो भी आप बता सकें. इसी तरह कंडेंसर की पोजीशन हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू कि किस टाइप ऑफ लेंस के साथ हाई होनी चाहिए. हाई पावर मैग्निफिकेशन के लिए या लो मैग्निफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे तो कंडेंसर की पोजीशन क्या होगी. रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, न्यूमेरिकल अपर्चर को डिफ़ाइन कीजिए. सडार वुड ऑयल किस लेंस के साथ यूज़ किया जाता है, तो ये 100x के साथ यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है, या आप अपना प्रैक्टिकल मैनुअल अपने साथ रखिए, तो सारे आपके रिलेटेड क्वेश्चंस ये आंसर हो जाएंगे. ऑब्जर्व स्टेशन अगर माइक्रोस्कोप का देखें तो यूजुअली इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. अनऑब्जर्व के अंदर अगर आएगा तो आपको फोकस्ड स्पेसिमन को इसके अंदर आ सकता है, जैसा कि डीएलसी की स्लाइड रखी हुई है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ सेल दिस इज़. अनदर ऑब्जर्व स्टेशन के अंदर अगर आएगा तो आपको फोकसिंग के लिए आ जाएगा. या तो आपको ज़्यादातर फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डीएलसी की स्लाइड दे दी जाती है कि इसको फोकस कर दें, या फिर न्यू बार्स चैम्बर दे दिया जाता है कि इसको फोकस करके दिखाइए, पर्टिकुलर उसका चैम्बर बता दिया जाता है. तो ये फोकसिंग में आपने जो की स्टेप्स यू हैव टू कीप इन माइंड, आपने पावर सोर्स को ज़रूर ऑन करना है, कंडेंसर की पोजीशन को सेट करना है, स्लाइड को सही से क्लब करना है. नंबर 4, आपने जब
फोकसिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले लो मैग्नीफिकेशन पे स्टार्ट करनी है, 4x से 10x पे, और फिर ज़रूरत हो तो 40 और 100x पे मूव कीजिए. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 10x 40x और 100x तो दैट वुड बी अ रॉन्ग इम्प्रेशन एंड इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस. तो यही ऑब्जर्वेशन आते हैं और यही 3-4 उसमें की पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ हीमोसाइटोमीटर. हीमोसाइटोमीटर में अगर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपरेटस करें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो नज़र आ रहा है कलेक्टिवली अपरेटस, इसको हीमोसाइटोमीटर कहते हैं. ये जो स्लाइड है दिस इज़ न्यूबास चैम्बर और 2 इसमें पेपर्स होती हैं, आरबीसी पेपर, डब्ल्यूबीसी पेपर. अब इन तीनों के ऊपर ही अनऑब्जर्व स्टेशंस बनते हैं, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के ऊपर भी. न्यूबास चैम्बर तो आपके सामने ही है, क्लियरली आइडेंटिफाएबल है. इस पर ये एच शेप्ड ग्रूव है, इसकी पर्टिकुलर लेंथ और हाइट है. आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पिपेट की आइडेंटिफिकेशन में देखा जाए तो आरबीसी पिपेट के ऊपर 101 तक मार्किंग है, जबकि डब्ल्यूबीसी पिपेट में 11 तक मार्किंग है. इनके अंदर रेड पिपेट है, डब्ल्यूबीसी पिपेट में वाइट कलर का बीड होता है. और इसके अलावा बल्ब का साइज़ देखें तो आरबीसी पिपेट का बल्ब साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डब्ल्यूबीसी पिपेट. ऑल्सो डाइल्यूशन फैक्टर डिफरेंट होगा, आरबीसी पिपेट के अंदर डाइल्यूशन ज़्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी पिपेट के अंदर कम होती है. जो आरबीसी पिपेट है ये आरबीसी और प्लेटलेट काउंट दोनों के लिए यूज़ होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी पिपेट सिर्फ डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए यूज़ की जाती है. तो इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स और इनके डिफरेंट पार्ट्स की लेबलिंग दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कैन रिवाइज फ्रॉम ओवर हेयर. इसके बाद अगर हम न्यूबास चैम्बर के ऊपर चलें तो यहाँ पे इसके माइक्रोस्कोपिकली आपको जो चैम्बर नज़र आएगा वो यहाँ पे आपके सामने है. आपको सिंपली अगर ईजीएस्ट क्वेश्चन आए तो न्यूबास अपरेटस या न्यूबास चैम्बर को अंडर माइक्रोस्कोप भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, या फिर इसका इमेज भी आ जाता है प्रिंटेड फॉर्म के अंदर कि इसको आइडेंटिफाई करें. ज़्यादातर जो पूछा जाता है इसमें से किसी एक चैम्बर को हाईलाइट कर दिया जाता है और आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि ये कौन सा स्क्वायर है, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग स्क्वायर है, आरबीसी या प्लेटलेट काउंटिंग स्क्वायर है. तो सेंटर वाला जो है वो आरबीसी या प्लेटलेट काउंटिंग स्क्वायर होता है और कॉर्नर 4 जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी काउंटिंग स्क्वायर होते हैं. अब ये वाला इमेज जो आपको पूरे का पूरा न्यूबास चैम्बर नज़र आ रहा है ये आपको 4x के ऊपर नज़र आएगा. इफ़ यू गो टुवर्ड्स अ हायर मैग्नीफिकेशन तो आपको ये सारे का सारा न्यूबास चैम्बर नज़र नहीं आएगा. तो कीप इट इन माइंड कि अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंडर पूरे का पूरा न्यूबास चैम्बर दिखाना होगा तो हम 4x के ऊपर देंगे. तो जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है किसी स्पेसिमन को और लिखना है अपने ऑब्जर्व स्टेशन के अंदर या अनऑब्जर्व स्टेशन के अंदर, तो ऑल्सो हैव अ लुक कि किस मैग्नीफिकेशन के ऊपर वो फोकस हुआ हुआ है. अब अगर आपने अंडर माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाई करना हो कि विच पर्टिकुलर स्क्वायर ऑफ द न्यूबास चैम्बर इज़ फोकस, तो वो आप कैसे करेंगे. राइट मोस्ट आप देख सकते हैं 4x के ऊपर आपको पूरे का पूरा न्यूबास चैम्बर फोकस नज़र आ रहा है. अगर आपको 4x के ऊपर दिखाया गया है तो उसमें आपको कोई एक स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, इसमें आरबीसी स्क्वायर्स भी होंगे और डब्ल्यूबीसी स्क्वायर्स भी होंगे. अगर हमने आपसे कोई एक पूछना हो आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल हैव टू मूव टुवर्ड्स अ हायर मैग्नीफिकेशन. 10x के ऊपर आपको आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर कुछ किस इस तरह का नज़र आएगा, दैट वन लार्ज स्क्वायर विल बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 25 स्मॉल स्क्वायर्स. ये आपको स्मॉल स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, 25 स्मॉल स्क्वायर्स, 5 into 5 वाला पैटर्न बना हुआ है. एंड ईच स्मॉल स्क्वायर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स. तो आप अगर 10x के ऊपर देखेंगे तो आपको आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर कुछ इस तरह का नज़र आएगा. अगर आप 40x के ऊपर देखेंगे तो आपको ये पिक्चर नज़र आएगी. 40x पे आपको 1 स्मॉल स्क्वायर ऑफ आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर नज़र आएगा जिसके साइड पे ट्रिपल रूलिंग है विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स. तो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है ऑलरेडी फोकस स्लाइड को विद इन द माइक्रोस्कोप यू विल हैव टू लुक एट कि विच मैग्नीफिकेशन इज़ बीइंग यूज्ड, और फिर उसके अंदर आपने देखना है कि स्मॉल स्क्वायर्स हैं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स हैं, रूलिंग किस किस्म की है. इसी को कंपेयर करें अगर आप डब्ल्यूबीसी काउंटिंग स्क्वायर से तो 4x के ऊपर ही आपको पूरा न्यूबास चैम्बर नज़र आ रहा है. 40x के 10x के ऊपर अगर आप देखेंगे इसको तो आपको 1 स्क्वायर नज़र आएगा, पूरा लार्ज स्क्वायर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंटिंग स्क्वायर. ये आपको पूरा लार्ज स्क्वायर नज़र आ रहा है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉलेस्ट या स्मॉल स्क्वायर्स. अब इसको आप आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर के 10x के अगर कंपेयर करें तो बहुत क्लियरली डिफरेंट है. ये आरबीसी का स्क्वायर था एट 10x which was divided into 25 small squares, जबकि WBC में 25 नहीं 16 small squares हैं. दूसरा बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पे
ईच स्मॉल स्क्वायर ऑफ आरबीसी काउंटिंग स्क्वायर फर्दर डिवाइडेड था, जबकि डब्ल्यूबीसी काउंटिंग स्क्वायर में फर्दर डिवीजन नहीं है। तो कुछ इस तरह की पिक्चर आपको नज़र आएगी। इसको अगर आप 40x पे ले जाएंगे तो बस आपको वन स्मॉल स्क्वायर नज़र आएगा जिसके इर्द गिर्द आपको सिंगल रूलिंग नज़र आएगी। अगर ट्रिपल रूलिंग नज़र आएगी भी तो किसी एक या दो साइड के ऊपर आएगी, चारों की चारों साइड्स के ऊपर नहीं आएंगी। जो कन्फ्यूजन होती है यूजुअली आइडेंटिफाई करने में, ये वाला जो इमेज आपको नज़र आ रहा है जिसमें चारों तरफ ट्रिपल रूलिंग है और अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 10x के ऊपर अगर नज़र आ रहा है तो दिस इज़ अ लार्ज स्क्वायर ऑफ WBC, 40x पे अगर नज़र आ रहा है तो दिस इज़ अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ RBC। सो हैव अ लुक एट दिस अगेन एंड अगेन एंड मेक योर माइंड मैप कि मैग्निफिकेशन को भी देखेंगे और आइडेंटिफाइड इमेज को भी देखेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई कि कौन सा स्क्वायर फोकस हुआ है। इसके बाद ये कंपैरेटिव पिक्चर है WBC और RBC काउंटिंग स्क्वायर की एट ईच मैग्निफिकेशन। आप इसको यू कैन हैव अ लुक एट दिस अगैन। अगर इनके वॉल्यूम और एरियाज़ की कैलकुलेशन कही जाए तो ये ऑब्जर्व स्टेशन में अनऑब्जर्व स्टेशन दोनों में पूछी जाती है। लार्ज स्क्वायर्स की सेम है दोनों में, 1 × 1 मिलीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इनका। स्मॉल स्क्वायर के ऊपर देखें तो RBC काउंटिंग स्क्वायर में 5 × 5 का डिवीज़न है, जबकि स्मॉल स्क्वायर के अंदर 4 × 4 की है, तो इनके यहाँ पे वॉल्यूम और एरियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं। जबकि RBC काउंटिंग स्क्वायर के अंदर देर इज़ फर्दर सब डिविजन इनटू स्मॉलेस्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक रह गई, या टॉप के ऊपर लेबल्स उल्टे लग गए। दिस इज़ RBC काउंटिंग स्क्वायर एंड दिस इज़ WBC काउंटिंग स्क्वायर। तो इसको आप रिवर्स में देखिएगा नीचे। अच्छा, अब अगर इनके प्रोसीजर के ऊपर जाएं तो हर स्टेप के ऊपर डिफरेंसेस हैं और हर स्टेप आपसे ऑस्पी में पूछा जा सकता है। ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ होगा इन तीनों के, WBC RBC प्लेटलेट काउंट के लिए, और उनके डिफरेंसेस क्या हैं। डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तीनों के फ़र्क हैं, हाइम्स फ्लूइड, टर्क्स फ्लूइड एंड रेस एकर्स फ्लूइड। काउंटिंग किन स्क्वायर्स में की जाती है, उनके वॉल्यूम कैसे काउंट किए जाते हैं, कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस स्लाइड एज वन अनऑब्जर्व स्टेशन। और कैलकुलेशंस तो इवन आपको ऑब्जर्व स्टेशन के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। तो RBC और WBC की फ़र्क है आपस में, प्लेटलेट्स और RBCs की सेम है। अगर आपको नंबर ऑफ़ RBCs माइक्रोस्कोप में से काउंट करके दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ़ RBCs कैलकुलेट करें पर ml ऑफ द ब्लड, तो यू शुड बी एबल टू डू दिस। आपने अब आप उसे काउंट भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और वो आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो है आपको डिटेल्ड फार्मूला है, नीचे शॉर्ट फार्मूला है। अनऑब्जर्व स्टेशंस की लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह के आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सा अपरेटस और कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फोकस्ड स्क्वायर आ सकता है, या फिर आपको एक सेल बना हुआ आ सकता है जिसमें से आपने नंबर ऑफ़ RBCs या WBCs को काउंट करना हो, फिर उस पर आपने थॉमस रूल अप्लाई करना होगा। अपरेटस रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया। थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज़ लिमिटलेस। जो भी आपकी हेमाटोलॉजी की थ्योरी है, सारी RBCs WBCs और प्लेटलेट्स की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे रिलेटेड ऑस्पी के अंदर पूछे जा सकते हैं। ऑब्जर्व स्टेशंस की बात करें तो 4 लेवल के ऊपर ऑब्जर्व स्टेशंस आ सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ अबाउट फोकसिंग, कि आपको पूरे का पूरा न्यूबास चैम्बर, कोई एक लार्ज स्क्वायर, कोई स्मॉल स्क्वायर या स्मॉलेस्ट स्क्वायर फोकस करने का कह दिया जाए। तो अगर आपने पूरा न्यूबास चैम्बर फोकस करना है तो आप 4x के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक WBC या RBC काउंटिंग स्क्वायर को फोकस करना है देन यू कैन यूज़ 10x। अगर उसकी भी फर्दर स्मॉलेस्ट स्क्वायर को करना है तो फिर आप 40x के ऊपर स्मॉल स्क्वायर को फोकस करने के लिए जाएँ, अदरवाइज 10x के ऊपर इट वुड बी गुड इनफ। 100x पे आपको जाने की कतई ज़रूरत नहीं है वाइल यूजिंग द न्यूबास चैम्बर। और अगर आपने 10x या 40x यूज़ करना भी है, स्टिल स्टार्ट फ्रॉम फोकसिंग एट द 4x। नंबर 2, आपको कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको इमेज दे दिया गया है या माइक्रोस्कोप के अंदर फोकस्ड स्क्वायर दे दिया गया और आपको उसकी सरफेस एरिया के कैलकुलेशन का कह दिया गया है। सरफेस एरिया कैलकुलेशन के अलावा आपको सेल काउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। यूजुअली ऑब्जर्व स्टेशन में टाइम लिमिटेड होता है, वी गिव यू द नंबर ऑफ सेल्स कि हमने काउंट किया था 64 स्क्वायर्स के अंदर हमें लेट सपोज 100 RBCs मिले हैं, तो अब काउंट कीजिए पर ml ऑफ ब्लड के अंदर कितने होंगे। सो अब आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा। तो फोकसिंग का क्वेश्चन,
कैलकुलेशन का क्वेश्चन, इसके अलावा चार्जिंग का क्वेश्चन भी बहुत ऑब्जर्व सेशन के अंदर कहा जाता है दैट चार्ज द हीमोसाइटोमीटर एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन द स्क्वायर। अब काउंट कैसे करना है, उसमें बस यही एक टेक्निक है कि आपने थॉमस रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं। अब रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए जो रूल है कि आपने 2 बॉर्डर्स पे काउंट करना है और 2 पे काउंट नहीं करना, तो आपने उसको कीप इन माइंड एंड ये आपको अनऑब्जर्व और ऑब्जर्व दोनों स्टेशंस में पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ द प्रोटोटिपिकल क्वेश्चंस जो कि ऑब्जर्व स्टेशन और अनऑब्जर्व के अंदर पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रैक्टिकल्स कीप इन माइंड दीज एस्पेक्ट्स एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।